আমার মাথায় টুপি বলে আমি প্রতিবাদ করতে পারবো না। ममता बनर्जी मोदी का एजेंडा पर काम कर रहा है। 5,000 টাকায় সমস্যার সমাধান নয়, পরিযায়ী শ্রমিকদের স্থায়ী সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের আজকে ধর্ণা বন্ধ। जिंदा जा रहा, उसकी लाशें भेजी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बंगाल की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। हम लोग उसी के खिलाफ ये आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बंगाल सरकार आंदोलन करने नहीं दे रही है। उसकी वजह यह है कि हम दाढ़ी टोपी वाले हैं, इसीलिए हमें आंदोलन करने का अधिकार नहीं। कोलकाता का धर्मतल्ला आज बन गया जंग का मैदान, जहां आईएसएफ के प्रदर्शन ने मचाई जबरदस्त अफरा तफरी। जी हां, एसआईआर और वक्फ बिल को रद्द करने की मांग को लेकर उतरे प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर ऐसा हंगामा किया कि पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। नौशाद सिद्दीकी की अगुवाई में हुआ ये विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे भारी टकराव में बदल गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई धक्का मुक्की और हालात बिगड़ते चले गए। आईएसएफ कार्यकर्ता बोले, हमारा प्रदर्शन केंद्र सरकार के खिलाफ है तो राज्य पुलिस हमें क्यों रोक रही है। स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि डीसी सेंट्रल तक मौके पर उन्हें पहुंचना पड़ा। लेकिन नौशाद सिद्दीकी का साफ कहना था, जहां भी पुलिस हमें जगह देगी वहीं से हम अपना प्रदर्शन करेंगे। मगर पुलिस ने नौशाद सिद्दीकी समेत कई कार्यकर्ताओं और समर्थकों को पकड़कर सीधे प्रिजन वैन में भर दिया। 27 তারিখ পর্যন্ত ওয়াকাফ সংশোধনী আইন 2025 বাতিলের জন্য যেভাবে ওবিসি সার্টিফিকেট নিয়ে জলগোলা হচ্ছে, এটার নিরসন, ফেক এসটিএসসি সার্টিফিকেট নিয়ে যেভাবে মানে নন এসটিএসসি ফেক এসটিএসসি সার্টিফিকেট পেয়ে যাচ্ছে, তার বিরুদ্ধে সর্বোপরি এসআইআর নিয়ে যেভাবে নাগরিক হয়রানি বা আতঙ্কিত করার চেষ্টা করছে, বলছে নাকি যাকে তাকে ডি ভোটার বানিয়ে দেবে, ডাউটফুল ভোটার বানাবে, ওটার প্রতিবাদে এবং ভিন্ন রাজ্যে যেভাবে আমাদের বাংলা শ্রমিকরা আক্রান্ত হচ্ছে বাংলা কথা বলার জন্য, গতকালকেও আক্রান্ত হয়েছে, বেধড়ক মার মেরেছে, এক মহিলা আক্রান্ত হচ্ছে, 18 বছরের টিনেজার কম্পিউটার এসেও আক্রান্ত হয়েছে। তাদের এই পরিযায়ী শ্রমিকদের উপরে যে বাংলা ভাষা আক্রমণ হচ্ছে, বাংলা ভাষার উপরে আক্রমণ হচ্ছে, এটা বন্ধের জন্য আজকে আমাদের ধর্ণা। কিন্তু আপনার এবার হচ্ছে কথা, আপনাকে বলি, এটা বলবে আর বাকি নেতৃত্বরা বলবে, আমি বলবো একটা কথাই, যে আমি ধর্ণায় বসবো, এটা আমার সাংবিধানিক অধিকার। এটা আমাকে এখনো পর্যন্ত পুলিশের সাথে কোনো আলোচনা হয়নি। পুলিশের কর্তারা এসেছেন, আমাদের লিডারশিপে আপনারা বাইট নেবার পরে আমরা পুলিশ কর্তাদের সাথে কথা বলবো, তারা কি বলছে শুনবো, তারপরে আমরা পদক্ষেপ করবো। তবে আমরা ধর্ণা মঞ্চে যাবো। মুখ্যমন্ত্রী 5,000 টাকা করে দেওয়ার কথা বলছে পরিযায়ী শ্রমিকদের, কি বলবেন? দেখুন, 5,000 টাকায় সমস্যার সমাধান নয়, পরিযায়ী শ্রমিকদের স্থায়ী সমস্যার সমাধানের জন্য আমাদের আজকে ধর্ণা বন্ধ। আমরা চাই কর্মসংস্থানের বাংলায় তৈরি হোক। ওই যে 5,000 টাকায় কত কাটমানি চলে যাবে না চলে যাবে, অরিজিনাল কারা পাবে, আমরা দেখেছি আবাস যোজনা কি হয়েছিল। দিল্লিতে গিয়ে আন্দোলনের কথা বলেছিল, আপনারা কলকাতায় আন্দোলন করছেন ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে। পুলিশ যেমন আটকানোর জন্য তৈরি হয়েছিল, আমরা ওয়াকফ সম্পত্তি বাঁচানোর জন্য, ওয়াকফের কালা কানুন প্রতিরোধ করার জন্য এবং গোটা দেশে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকরা যেভাবে আক্রান্ত হচ্ছে তাদের বিচার দেওয়ার জন্য ওয়াকফ বিরোধী, মোদী বিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে যাদের মুর্শিদাবাদে গ্রেপ্তার করে 750 মানুষকে, নিরীহ মানুষকে তাদের গ্রেপ্তার করে রাখা হচ্ছে, তাদের ন্যায় আর ইনসাফ দিতে আজকের শান্তিপূর্ণ অবস্থান ধর্ণা হবে। এই শান্তিপূর্ণ অবস্থান ধর্ণা করার অধিকার প্রত্যেকটা সংগঠনের আছে, প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলের আছে। সেটা যেমন মুখ্যমন্ত্রী নিজে ধর্ণায় বসেন, আমরাও ধর্ণায় বসবো। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ করার জন্য আসেনি। আশা করি পুলিশেরও যেমন আইনের ঊর্ধ্বে নয়, আমরাও আইনের ঊর্ধ্বে নয়, সবাই আইনকে সম্মান জানিয়ে আমরা লড়াই। চলো ঠিক আছে। দিল্লির ব্যাপারে আপনারা বলছিলেন দিল্লিতে আন্দোলন করার কথা, এই আইডিয়াটা মুখ্যমন্ত্রীর মস্তিষ্ক প্রসূত। তাহলে দিল্লিতে গিয়ে আন্দোলন মুখ্যমন্ত্রী করবেন, আমরা বাংলার মানুষ বাংলায় আন্দোলন করব, এটা আমাদের বুনিয়াদি অধিকার, এটা আমাদেরকে ছিনতে পারবে। चलो, पुलिस को समझना होगा। अभी हम पुलिस भाई से ही बात कर रहे थे कि हम लोग किस लिए 2011 से डीए का पैसा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? सरकारी नौकरी करने वाले क्या इंसान नहीं है? संविधान उनको हक देता है कि आप डीए का पैसा सरकार देगा। ये सरकार 2011 में आया, डीए का पैसा बंद किया। वो इंडियन सोशल फ्रंट 2021 में आया, वो बोला नहीं होने देंगे।
फिर ज्यादा नौशाद सिद्दीकी साहब बोले नहीं, जिसके साथ में अन्याय होगा, जिसका हक छीना जाएगा, फिर ज्यादा नौशाद सिद्दीकी सामने आएंगे, उसके पीछे हम लोग आएंगे। यही आंदोलन है। संविधान के खिलाफ काला कानून नरेंद्र मोदी 2025 कानून बना दिया, मनमानी किया। क्यों भाई? हमारे अब्बा अजदाद ने अल्लाह के राह में सवाब के नियत से वो कबड्डी किए थे। आप बोले नहीं, जो सरकार तय करेगा वो होगा। क्यों होगा? वो जमीन हमारे अब्बा अजदाद अल्लाह के राह में दिए, एक बार दान हो जाता है वो वापस नहीं होता है। मगर ये काला कानून संविधान के खिलाफ ये लोग काम कर रहा है। हम लोग मोदी के खिलाफ है, ममता बनर्जी होने नहीं दे रही है। यहाँ से समझ में आता है ममता बनर्जी मोदी का एजेंडा पर काम कर रहा है। उस एजेंडे को, उस नापाक चेहरा को हम लोग बेपर्दा करने के लिए आज यहाँ पे मेट्रो चैनल के पास में फिर ज्यादा नौशाद सिद्दीकी साहब के नेतृत्व में आए हुए हैं। और जब तक हमारे बंगाल वासी को, हिंदुस्तान वासी के लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है, ये लड़ाई इसी तरह होगा। ये देखिए पुलिस का गुंडागर्दी भाईजान को किस तरह से टांग के भर रहा है। जब भी आंदोलन होता है ऐसी होता है। पुलिस गैर कानूनी काम कर रही है, गैर संवैधानिक काम कर रही है। हमारे आंदोलन को रोकने के लिए हम लोग रोना चाह रहे हैं। जो हमारे बंगाली श्रमिक के ऊपर दूसरे रियासत में, दूसरे स्टेट में जो अत्याचार हो रहा है, उसके लिए हम लोग यहाँ आंदोलन करना चाह रहे हैं। डी वोटर किया जा रहा है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सबका डी वोटर करने का जो चक्रांत तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा, हम उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन ये आंदोलन को बंगाल की पुलिस, ममता बनर्जी पुलिस आंदोलन को रोकना चाह रही है और हमें आंदोलन करने से रोक रही है। लगातार देखा जा रहा है कि बीजेपी शासित राज्यों में बांग्ला पशुओं के साथ उसी के लिए हम लोग रोना चाह रहे हैं। यहाँ स्टेज बनाकर अपना दुखड़ा रोना चाह रहे हैं कि हमारे भाई के साथ मारा जा रहा, जिंदा जा रहा, उसकी लाशें भेजी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बंगाल की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। हम लोग उसी के खिलाफ यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बंगाल सरकार आंदोलन करने नहीं दे रही है। उसकी वजह यह है कि हम दाढ़ी टोपी वाले हैं, इसीलिए हमें आंदोलन करने का अधिकार नहीं है। हम लोग करेंगे आंदोलन, आप देख रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। पुलिस भी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन है, हम भी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन चल रहे हैं। हमको जो संविधान अधिकार दिया है, हम उसको मान करके चल रहे हैं। वो आप देख रहे हैं, लेकिन पुलिस इसको अशांति में पैदा करने का कोशिश कर रही है, जानबूझ कर करके। बीजेपी और तृणमूल दोनों गवर्नमेंट एक ही पथ पे चल रही है, दोनों भाई बंधु है। इसलिए हम निंदा करते हैं बीजेपी सरकार का, वही हम ममता बनर्जी सरकार का भी निंदा करते हैं। ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये था जनता के गुस्से का विस्फोट। एसआईआर और वक्फ बिल को लेकर अब सियासत और भी गरमाने वाली है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये आंदोलन सरकार को झुकाने में कामयाब होगा या फिर विरोध की ये गूंज भी पुलिसिया कार्रवाई में दब जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, सुपर न्यूज़ 24। से चलती आ रही है एक कहानी, स्वाद की, परंपरा की और भरोसे की। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, मलिक बाजार, कोलकाता। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं, बल्कि एक एहसास है, जहां बिरयानी में इतिहास की खुशबू है और मटन चाप में रूह बसती है। शिराज की बिरयानी मसालों से नहीं, मोहब्बत से बनती है। 3 पीढ़ियों की विरासत, दादा से पिता और अब बेटे तक। इसकी 5 शाखाएं हैं, वीआईपी बाजार, अजय नगर, सॉल्ट लेक, चिनार पार्क और दिल में बसने वाला मलिक बाजार। अब मलिक बाजार शाखा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी उपलब्ध है। घर जैसा माहौल, रॉयल सेटअप और स्वाद जो हर मौके को खास बना दे, जिसके स्वाद के दीवाने तमाम सेलिब्रिटीज हैं। दुर्गा पूजा पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती है और जुबान पर बस एक ही नाम होता है, शिराज का। शिराज का वादा, क्वालिटी, विरासत और वो स्वाद जो एक बार चख लिया तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आज ही आए शिराज। पता है मलिक बाजार, 135 पार्क स्ट्रीट, बिहाइंड न्यूरो साइंस हॉस्पिटल, पार्क सर्कस, बेनियापुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, स्वाद जो सिर्फ जुबान पर नहीं, दिल में उतरता है।